Okay, good morning, students. You all are welcome in the lecture that today in the Department of Microbiology, and today we will discuss about the contamination and spoilage of poultry and canned food. Uh, okay, poultry, and before this we have already discussed about the different type of the contamination and spoilage in different type of the foods like vegetable, meat, fish, etc. And today we will discuss about the contamination and spoilage of the poultry and then in the canned food. Okay, so here, poultry is a category of domesticating birds kept for human for the purpose of collecting eggs and meat and the feeder purpose. There are a different type of the birds that are used for collecting egg and meat purpose, and nowadays for the feeder purpose also. Since a very early time by the human for to consume the egg and the meat. Okay, and presently, the poultry is the second most widely eaten meat, and it accounts for the 30% meat production worldwide. Okay. जितने भी मीट प्रोड्यूस होते हैं उसका 30% जो है वो कहाँ से आता है, पोल्ट्री से आता है. दिस इज द वर्ल्ड वाइड डाटा. Okay, so you can see here this is the poultry of the world. These are the birds that are used for the collecting eggs and meat and feeder also. But generally, when we talk about the poultry, generally we think that the poultry have only chicken. And that means the poultry meat means the chicken meat, chicken egg. But there are a lot of the birds that comes under the poultry, and the common are here. You can see in this image the chicken. This one is the chicken. Turkey. This one is the turkey. A squab, duck, squirrel, goose, and the pigeons, and etc. Some other birds are also used for the production of the eggs and for the consumption of their meat. Okay, so here we will talk about the contamination of the poultry. So how the poultry products gets contaminated, and how we can preserve and how we can reduce the contamination so that the contaminants could not spoil our foods. So here in the image you can see the products, cardboards, knife, and the handlers during the washing, and even the plucking and the bleeding that we have already discussed in the meat processings, and storage also. So there are a lot of the way that are responsible for the contamination of the poultry and the poultry products. Okay, so here contamination of the poultry, that is the skin. Students, before going to discuss in details, see here some terms that we will use, and you must know what is the meaning of this terminology that are used during the processing of the poultry. First term is the stunning. That means the स्टनिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी एनिमल को जब उसको किल करने से पहले उसको अनकॉन्शियस कर देते हैं, ठीक है, और उसको इमोबाइल कर देते हैं बिल्कुल ही, तो उसके लिए आजकल कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज दे करके हम उसको कर देते हैं, या आपने जो मैकेनिकली भी देखा होगा
हमर लाइक जो वुड का बना होता है उससे भी उसको हेड पर चोट दे करके उसको कर देते हैं, ठीक है, उसको तो उसको बिल्कुल ही शून्य कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टनिंग। ओके, अनकॉन्शियस हो जाता है एनिमल, मूव नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, उसको कट करना इजी होगा, ठीक है। जब कट कर लिया जाता है, उसका हेड को रिमूव कर दिया जाता है, देन स्टार्ट्स द ब्लीडिंग स्टेज वेयर देयर इज ड्रेन द ब्लड, जितने भी ब्लड्स है उसके नेक के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना। एंड ब्लीडिंग के दौरान बहुत ज्यादा चांस होता है कंटामिनेशन के, अगर प्रॉपर तरीके से ब्लीडिंग ना किया जाए तो, ठीक है। अगर वहां पर पूरा सैनिटाइजेशन अगर ना हो तो वहां पर क्या होगा कि ब्लीडिंग के दौरान जो प्रोडक्ट्स है वो कंटामिनेट हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एस्केल्डिंग, ब्लीडिंग के बाद एस्केल्डिंग प्रोसेस आता है। इसमें क्या होता है कि जो पोल्ट्री होते हैं उस पोल्ट्री को हम हॉट वाटर से ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। उससे ट्रीट करने का पर्पस होता है टू रिमूव द फीदर्स। ओके, तो जो स्किन के ऊपर जो फीदर होता है वो इजिली रिमूव हो जाता है हॉट वाटर से ट्रीटमेंट करके, स्टीम से भी ट्रीट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैल्डिंग। आपने देखा भी होगा जब पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आप कभी अगर परचेज करने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दे यूज टू ट्रीट द पोल्ट्री इनसाइड द हॉट वाटर, ठीक है। उनके पास एक कंटेनर होता है, ठीक है। उसके बाद डीफीदरिंग, ओके, द प्रोसेस वेयर देयर इज रिमूव द फीदर्स, फीदर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इविसरेशन, इविसरेशन इज द टर्म दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, that is the viscera and especially the abdominal parts, ठीक है ना। Because you know that have foods that has been taken from the outside and the abdominal parts will have a heavy load of microorganisms, so that it should be properly removed, and then the chilling. This is where the keep the poultry in the cold storage for the storage. Okay, so these are the terms that are used during the processing. So let's start the poultry. You know, contamination. The you know, the skin of the live birds may contain a number of bacteria ranging about the 1500 per square centimeter, and they are derived from the feed that are directly contact with the soils. Feeder also open in conditions, and the birds move from here to there, and the feces also. Contamination of the skin and the lining of the body cavity occurs during the washing, plucking. Plucking का भी मतलब वही होता है जो उसके जो हेड को कट करके पकड़ करके उसको हेड डाउन करके जो कट किया जाता है, ठीक है ना, उसको दैट इज कॉल्ड प्लकिंग। इविसरेशन, इस दौरान भी वहां पर कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं अगर प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को फॉलो ना किया जाए तो। द प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग एंड द ब्लीडिंग, स्टिकिंग का भी मतलब होता है जब नेक के पास कट कर दिया जाता है तो वहां से जो मेजर आर्टरीज हैं that should be removed, and the process is known as sticking. And the bleeding can also introduce the contamination, and beside these the other parts like the knives, cloths, ear, hands, and the clothing of the workers that are directly involved in the processing of the poultry, they are a major cause of the contamination of the poultry products. Okay, and after that, if all the process has been processed, that means the products has been cut, and then it will be stored for the selling in the carts, box, and the container. During that times, also the cart, box, and the containers that have been already contaminated with earlier earlier cut material that have been stored in the box, and when they have been sold out, and the cart, box, and the containers
have not been washed and sanitized properly, then the fresh products will be contaminated when they will stored in these boxes. Okay. In this way, the poultry will be contaminated. आप ये देख रहे हो, दिस इज द scalding. Plucking, sorry, this one is the plucking. This process is the plucking. इसके लेग को रख के और यहाँ पर हेड को डाउन करके रख दिया जाता है. एंड दिस वन इज द scalding, जो हॉट ट्रीटमेंट करते हैं. But now, you know, nowadays in the industrial large scale production of the poultry products, the whole the process are the automatics, and the process are not in direct contact with the humans, so that there is the less chance of the contamination. You can see here in the large scale of the production, the industrial setups, they have set all the automatic machinery, even the automated conveyor that will transport the poultry from one place to the another place without human interfere, and evisceration that is normally done manually in the normal case, but here in the industry where the large scale productions are being done, the vacuum evisceration is done, so that there will be less chance of the contamination. So nowadays, chicken and other products are being sold in market in the packaged form also. You can purchase ready-made and packed chicken products and other poultry products from the markets. So here how they got spoiled after the contaminations. If you will follow the proper hygienic conditions, proper guidelines, proper rule to process the poultry, you can reduce the chance of contamination and the spoilage. But the poultry products have very good and nutrients, very protein, carbohydrate, fats, and we have already seen the composition of the meat and fish, that similar to that here also. These and moisture also, these conditions will attract the growth of variety of the microorganisms, and they will spoil the foods if they will grow and multiply and cause the spoilage. So spoilage, most bacterial growth takes place on the surface, like the skin, lining of the body cavity, and any cut surface. Okay, enzyme of the fall जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है उसका खुद का एंजाइम्स, जो ड्रेस्ड बर्ड्स है, जो जिसको कट कर दिया गया है, जिसके फीदर रिमूव कर दिया गया है, स्कैल्डिंग हो रखा है, ठीक है, उस स्कैल्डेड जो बर्ड्स है, फॉल है, उसका अपना एंजाइम्स दे स्टार्ट्स टू डिटेरियोरेट द टिश्यू. Okay, and bacteria is the chief source of spoilage that comes from the intestines. पहले ही मैंने बताया जो एब्डोमिनल पार्ट्स है, जो कि बाहर से फूड उसमें इंटर कर रहा है, and they have a good load of the microbes, and that microbes will responsible for the spoilage of the products if that will not remove properly. So sign of the spoilage, there is an off odor, okay, change in the color, आपको बिल्कुल कलर दिख जाएगा, चेंज कलर, feels sticky, आपको चिपचिपा दिखेगा, slimy and the tacky, tacky का भी मतलब चिपचिपा होता है, जब आप टच करोगे तो उसमें आपको slimy एक लेयर का फिल होगा, that indicates that the products has been spoiled.
Now the eviscerated poultry held at 10 degrees centigrades or below is spoiled mostly by the pseudomonas. But when you store at low temperature below 10 degrees centigrades and more, that in that condition, yeast like the Torulopsis and Torula will contaminate. And when you will store the poultry above the 10 degrees centigrades, the maximum numbers of microorganisms like the micrococci, alkaligens, and the flavobacterium will grow and spoil the foods. Okay, ice cut up poultry often develops a slime that is accompanied by the odor described as the tainted, acid or sour. ओके, जो आइस में रख दिया गया है पोल्ट्री को, ठीक है, उसमें भी जो कट करके आइस में रख दिया गया है ताकि लॉन्ग टाइम तक उसको रख सके, तो उसमें भी माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस द ऑफ ओडोर एंड ऑफ टेस्ट आल्सो. ओके, तो एंड द माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल विल Pseudomonas and the alkaligens. So here you can see the products and the bacteria. What types of the bacteria will grow in which type of the products? Raw eviscerated carcasses, जो मीट है वो eviscerated कर दिया गया है, raw है बिल्कुल फ्रेश कट किया गया है, तो वहाँ पर Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas pudita, Acinetobacter and Morozella will grow. Dark meat and the white meat. You know, dark meat and white meat both are present in the poultry and जो dark meat होता है, आपको यहाँ पर सबसे पहले image देखो, this one is the dark and this one is the dark meat and this one is the white meat. Dark meat में क्या होता है? It contains the red 10% red fiber white meat, and the dark meat contains the 50% white fibers, and actually the white meat is of the breast and the wings, and it contains only 10% रेड फाइबर्स. एंड इसका एक डिमेरिट होता है कि इसमें रेड फाइबर कम होने के कारण इट ड्राइज ऑफ वेरी इजिली. जैसे ही अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा कुक कर दिया जाए तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है. ओके, तो और डार्क मीट होता है, इसको अगर हम कुक भी कर दें तो ये जल्दी ही ड्राई नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक ये जूसी और इसका फ्लेवरफुल मेंटेन रहता है. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डार्क एंड द व्हाइट मीट. तो डार्क मीट इज द मोर flavorful or juicy even after the long cooking. Okay, and it is actually the part of the chicken legs. इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को चिकन लेग बहुत ज्यादा पसंद होता है. ठीक है, तो व्हाइट मीट हैव ओनली 10% रेड फाइबर, बट डार्क मीट हैव 50% रेड फाइबर. Okay, this is the difference between the dark meat and the white meat. So dark meat, which pH is 6.4 to 6.7, and white meat pH is less than dark meat, where definitely the microbes that will prefer the acidic conditions will grow, like the Pseudomonas and some other acid-loving bacteria. And the dark meat that pH is towards the neutral will support the growth of the Acinetobacter, Monas and the Pseudomonas. Chicken wrapped in the oxygen impermeable film. ठीक है ना, ऐसा फिल्म में जैसे में कि ऑक्सीजन इम्परमिएबल फिल्म में उसको रैपर्स में अगर रैप कर दिया गया हो, तो इन दैट कंडीशंस इट विल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, because here there is very or no oxygen availability. Okay, lactic acid bacteria and some others. Vacuum packed chicken, जो कि कैंट चिकन है, बिल्कुल ही वैक्यूम पैक्ड है. ठीक है ना, इट विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द इंटेरोबैक्टर एंड द अदर बैक्टीरिया. Chemical change in the poultry meat other than those caused by the microorganisms occur during the refrigerated storage and will time reduce the quality. जब हम इसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं मीट को, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अगर हम कर दें, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो उसमें ग्रो करेंगे ही जो लो टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं. अदर जो चेंजेस होता है उसमें वो चेंज होता है केमिकल चेंजेस, जो उसका अपना जो केमिकल्स प्रेजेंट है पोल्ट्री के अंदर, दैट विल
also change the quality of the meat, poultry meat. Okay, so we can see एक इमेज देख रहे हो पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज है कि we can see 1,000 miracles around the every day हम देखते हैं, but you know this miracle is very unique, that the supernatural, that the egg yolk turning into the chicken. जो एग यॉक है, जो आप इसको कंज्यूम कर जाते हो तो मदर्स उसको जो इंक्यूबेशन देती हैं, प्रॉपर इंक्यूबेशन, एंड दैट एग यॉक टर्न्स इनटू द चिकन, आप इसको देख सकते हो. ओके, तो दैट इज द स्टेट बाय द पार्कस कैडमैन. So how we can preserve? Definitely we need a very proper conditions, icing. Here you can see proper storage conditions. You can see also this is the stored poultry, and we should maintain the proper temperature, proper humidity, and we can store for the long time. But we cannot store the meat or the meat products except the canned products for the long time, like the year and more. Okay, so poultry preservation, principle of the preservation in the meat and the meat products also, here the apply the poultry also. दोनों में एक ही जगह एक ही सेम होता है क्योंकि दोनों का कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है. बट हियर द प्लकिंग एंड ब्लीडिंग रेज डिफरेंट प्रॉब्लम्स. प्लकिंग चूंकि यहाँ पर एक एडिशनल प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर तो प्लकिंग अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं करें तो यहाँ पर कंटेमिनेशन हो जाएगा, ठीक है. तो the method of killing and bleeding of fowl has an important effect on the quality of the product. आपको पहले ही बताया कि इस समय मीट में भी बताया था आपको, ठीक है, मीट प्रोडक्ट्स में वही है यहाँ पर. The method of plucking also has some influence on the keeping the quality of the birds. Okay, dry pluck meats, आप यहाँ पर देखोगे कैसे प्लग करते हैं, ठीक है ना. ड्राई प्लग मीट्स एंड द स्टीम स्कैल्डिंग, ठीक है ना. जो ड्राई प्लग मीट है उसमें हम स्टीम यूज नहीं किए हैं, ठीक है ना, ड्राईली उसको प्लग किया गया है. तो बर्ड्स आर मोर रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन देन सेमी स्कैल्डेड और स्कैल्डेड प्रोडक्ट्स, you know, because the skin is less likely to be broken but more pin feathers are left. Okay, जब ड्राई जो प्लग बर्ड्स है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, पिन फीदर्स का मतलब होता है कि इमेच्योर फीदर्स. ओके, इमेच्योर फीदर्स वहां पर क्या हो जाते हैं, सेमी स्केल्डेड और स्केल्डेड जो टेक्निक्स है, ठीक है ना, जिसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं उसमें या स्टीम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें पिन फीदर्स वहां पर बच जाते हैं, एंड दैट विल हैव माइक्रोब्स एंड दैट विल help in the spoilage of the products. Okay, so the steam scalding of bird is more effective than the hot water, you know, because steam will penetrate and it will destroy the bacteria including the coliform and the salmonella. Okay, so steam scalding is more effective in comparison to the hot water scalding. Asepsis, the sanitation of the handling of the birds before killing has influenced the number of microorganisms on the skin at the dressing. Okay, अगर उसकी प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन किया जाए तो उसमें डेफिनेटली माइक्रोऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ तो क्या होगा, कम होगा. इवन अंडर बेस्ट कंडीशंस, इफ द कंडीशंस ऑफ हैंडलिंग एंड द स्टोरेज आर नॉट गुड, इट विल अलाउ द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट विल डिटेरियोरेट द poultry. Contaminations can be prevented if the fowl is not eviscerated. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक जब अगर मान लो कि मार्केट्स में प्लग कर लिया गया, स्कैल्ड कर लिया गया, ठीक है, उसको स्कैल्ड करने के बाद भी अगर उसके विसरा को, इंटरनल पार्ट्स को जब तक कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा है तब तक उसको अगर हम रिमूव ना करें, ठीक है ना, तो देन अगेन हियर it will reduce the chance of the contamination. और बेटर तो ये है कि जब कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा अगर स्टोरेज कंडीशन फैसिलिटी नहीं है तो जो सेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स शुड नॉट
scaled also the poultry to keep in the open conditions, जो कि आपको मार्केट में देखा गया होगा। आप जब मार्केट में जाते हो परचेज करने तो आपने देखा होगा कि दे have dressed the poultry, and some dressed poultry have been available directly when you go and you can purchase, but that will have contaminated because of the open conditions. Okay. The shackles, जो उसकी हथकड़ी होता है जिसको बांधने के लिए यूज किया जाता है, ओके, द shackles holding the feet and the head of the fall, जो उसको बांधने के लिए यूज किया जाता है, that is also a source of the contaminations. ओके, तो अगर इन सभी चीजों को हम प्रॉपर फॉलो करें तो we can reduce the contaminations. Use of it, chickens and other fowls may be canned. कैन प्रोडक्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैन फूड्स कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन इसको जब इसको पैक किया जाता है तो इसी के जूस में पैक किया जाता है. हीट प्रोसेस आर यूज्ड फॉर द कैन्ड मीट्स. द चिकन और अदर फॉल्स मे बी साल्टेड इन ए वीक ब्राइन बिफोर बीइंग पैक्ड into the glass jar of the cans. You can see here the chickens are available in the ready-made forms. You can purchase directly and consume. You can cook and consume. Okay, तो यहाँ पर salt ट्रीटमेंट किया जाता है वीक ब्राइन से, ठीक है ना, जिससे कि क्या होगा कि उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोका जा सकता है. ठीक है. Use of the low temperature also, here the most poultry is preserved either by chilling or the freezing. The lower the temperature of the storage, it will allow the storage of the products for the longer times. But it will, because it will not support the growth of the microbes. Chilling storage of the poultry is for only a short period. ठीक है ना, चिलिंग हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग जो अमाउंट का पोल्ट्रीज है उसका अलग अलग होल्डिंग टाइम्स होता है, हम कितना देर तक उसको चिलिंग कर सकते हैं. ड्रेस बर्ड्स आर समटाइम्स स्टोर्ड इन द आइस व्हेन देयर इज नो अवेलेबल मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन. ठीक है ना, अगर आपके पास प्रॉपर रेफ्रिजरेशन अवेलेबल नहीं है तो आप उसको आइस में रखना चाहिए. ठीक है. द पोल्ट्री शुड बी चिल्ड 4 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस फॉर हाउ लॉन्ग डिपेंड्स ऑन द वेट. ठीक है ना, हम कितने देर तक इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं वो डिपेंड करता है कि इसका वेट कितना है. 4 आवर्स इफ द पोल्ट्री हैव लेस देन 4 पाउंड्स. ओके, 4 to 8 पाउंड्स के लिए 6 to 8 आवर हम रखना चाहिए इसको. ठीक है. एंड अगर 8 पाउंड से ज्यादा है तो देन 8 आवर्स विल बी द timings for the preservation to keep the products. Okay. Freezing, poultry can kept in the good conditions for the month when it's frozen. फ्रोजन कंडीशंस में आप मार्केट में देखते होंगे फ्रोजन जो पोल्ट्री अवेलेबल होता है. ठीक है. तो पोल्ट्री शुड बी फ्रोजन फास्ट इनफ to retain the most natural bloom and the external appearance. बिल्कुल आपको फ्रोजन जो पोल्ट्री है आपको देखने में, जब आप उसको परचेज करोगे तो आपको देखने में बिल्कुल ही फ्रेश दिखेगा. ठीक है ना. इसका टेम्परेचर जो होता है, स्टोरेज टेम्परेचर अबाउट द -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. ठीक है. उसमें जो फ्रीज यूज किया जाता है -20 -40 डिग्री वाला फ्रीज यूज किया जाता है, डीप फ्रीज जिसको हम बोलते हैं. ठीक है ना. और उसमें ह्यूमिडिटी 95% ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखते हैं उसको. ठीक है. फ्रेशनेस उसका बना है. So here the refrigerator home storage, जो होम घरों में जो फ्रिज होता है उसमें हम पोल्ट्री को कितने दिन तक रख सकते हैं. पोल्ट्री जो कि कौन सा है, फ्रेश और अनकुक्ड पोल्ट्री. ओके. पोल्ट्री कुड बी स्टोर्ड फॉर द 1 to 2 days. ग्राउंड पोल्ट्री जो कट कर दिया गया है 1 to 2 days also, and the uncooked turkey sausage जो कबाब होता है 1 to 2 days. Here the refrigerator जो हम रख सकते हैं सील्ड एट द प्लांट, जो प्लांट्स में ही जहाँ पर प्रोड्यूस हुआ वहीं पर उसको सील्ड कर दिया गया. तो कुक्ड पोल्ट्री हम 3 to 4 days कब, आफ्टर द परचेज.
ऑन ओपन कंडीशंस में, ठीक है, एंड आफ्टर ओपनिंग 3 to 4 days ऑल्सो. ए स्मोक टर्की होल फ्रोजन आफ्टर द डीफ्रोस्टिंग, जो फ्रोस्टिंग जिसको डीफ्रोस्टिंग के बाद का टाइमिंग है 3 to 4 days, ठीक है, एंड हियर ऑल्सो 3 to 4 days. Cooked sausage 3 to 4 and 3 to 4 days after opening also. But here the canned poultry, very important here, the canned poultry or the self stables, जब आपको इसको जब तक ओपन नहीं करते हैं तब तक ये स्टेबल होता है. तो 2 to 5 years, ओके, इसको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको ओपन कर देते हो तो यू हैव टू कंज्यूम विद इन 3 to 4 days, and you have to keep the products in your home storage fridge at the 40 degree Fahrenheit or the below. Okay, use of the preservative. Here you can see the poultry are soaked in a organic acid like the acetic, adipic and the succinic acid at the pH 2.5. This pH will not support the growth of the most of the microorganisms. Only acidophilic microorganisms will grow, but this pH will enhance the storage time of the poultry. Okay, some falls like the turkey are cured in the solution of the salts, sugar and the sodium nitrate for the several weeks at about 3.3 degree centigrade. Okay, so you can see here the products that have been preserved by using the preservatives. A smoking process also used, but more on the flavor than the preservation. इसका काम प्रिजर्वेशन से ज्यादा उसमें फ्लेवर ऐड करना होता है. आपको बताया भी था स्मोकिंग के दौरान उसमें एडिशनल फ्लेवर ऐड हो जाता है, ठीक है. रिकमेंडेड टेम्परेचर ड्यूरिंग द स्मोकिंग should be 43 to 60 degree centigrade and time range from a few hours to the several days to provide the good flavors. Okay, these are the smoked poultry products. Carbon dioxide atmosphere also helpful in the storage, increasing carbon dioxide concentration up to the 20% in the atmosphere of the stored chickens inhibit the growth of the psychrotrophs. ओके, जो साइक्रोट्रॉप्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं वहां पर ग्रो नहीं करेंगे. यूज ऑफ द इरेडिएशन स्पेशली हियर द कैथोड और द गामा रे आर हेल्पफुल इन द preservation of the poultry, because during the irradiation treatments by using the cathode or the gamma ray, it will not change the external appearance or the any quality, and if it will change, that should be ignorable, and it will not allow to grow the maximum numbers of microorganisms. Even it will destroy the growth of the salmonella also, and definitely it can be very helpful for the storage. Now the contamination and spoilage of the canned food. Okay, so students, we have completed the sections of contamination and spoilage of the poultry and the poultry products. So if you have any questions, you can ask, or we will move to the other topic, that is the contamination and spoilage of the canned food. Okay, students, if you have any questions, you can ask. Hello students, are you listening? Okay, so I am moving to the next topics, that is the contamination and spoilage of the canned food. And आपने canning process पढ़ा है? Have you studied about the canning process?
That means you know what is the canning? Hello. Okay. So we will discuss here briefly about the canning before the topics, that is the contamination and spoilage. So we must know what is the canning process. Okay. So here the canning, what is the canning? Canning is the method of preservation of the foods in which foods is processed and hermetically sealed in the containers. Okay, जो इसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके हीट ट्रीटमेंट करके उसको हम कंटेनर में पैक कर देते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर लीकेज प्रूफ कंटेनर्स में, और देन उसको अगेन हीट किया जाता है और उसको रैपिड कूलिंग किया जाता है और उसके बाद इसको प्रोडक्ट्स को लो टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाता है. एंड देन कैन प्रोडक्ट्स कैन बी preserved for a long time. Even you can preserve for the canned products for the 1 to 5 year, and even the data said that you can also preserve the products, canned products, up to the 30 years, and it will not allow to grow the growth of the microbes inside the products, canned but if all the conditions have been followed properly, okay, अगर बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रोसेस किया गया हो तो उस प्रोडक्ट्स को हम अप टू द 30 इयर्स उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. हो सकता है कि उसकी टेस्ट में कोई चेंजिंग आ जाए, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी माइक्रोब्स आपको नहीं मिलेगा. ऐसा कई बार देखने को मिला है उसमें, ठीक है. तो हीटिंग इज एन प्रिंसिपल फैक्टर टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड द परमानेंट सीलिंग इज टू प्रिवेंट द री इन्फेक्शन. ओके, इसमें जो हम हीटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स का और उसको सील कर देते हैं कंप्लीटली, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हीट कर देने से माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सील कर देने से उसमें री इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है. उसको आप जैसे भी रखोगे, अगर उसका जो पैकेट है, जो उसका कंटेनर है, अगर वो कहीं से भी किसी भी तरह से लीक ना हुआ हो तो उसमें कोई भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते उसमें, ठीक है. तो इसका जो कंटेनर्स है कैसा, किस चीज का होता है? मेटल का होता है, ग्लास का होता है, थर्मोस्टेबल प्लास्टिक्स का भी होता है, मल्टी लेयर्ड फ्लेक्सिबल पाउच भी होते हैं जो आजकल मार्केट में आपको देखने को भी मिलता है, ठीक है. तो इस तरह हम इसको कैनिंग प्रोसेस से फूड्स को पैक कर दिया जाता है उसमें, ठीक है. So you know history about the canning. The first times in the 18th century in the France. Here you can see the Napoleon Bonaparte's in the France governments offered a heavy cash prize 12,000 francs. अब आप सोच सकते हो उस समय 18th सेंचुरी की बात है, उस समय 18th सेंचुरी में 12,000 फ्रैंक्स जो मनी है उस समय अनाउंस किया गया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कि उसका एम क्या था कि वो कोई ऐसा इफेक्टिव टेक्निक्स कोई बना कर बता दे, ठीक है, कोई ऐसा टेक्निक्स बना दे जिससे कि उसमें जो आर्मी के जो फूड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाया जाता था वह स्पॉइल ना हो, उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है ना, उसका पर्पस यही था, ठीक है. तो 1809 में निकोलस एपर्ट, एक्चुअली ही वाज ए फ्रेंच कन्फेक्शनर एंड ब्रूअर्स, वो कन्फेक्शनर एंड ब्रूअर्स थे, उन्होंने इस चीज को भी सुना और उन्होंने देखा कि फूड कुक्ड इनसाइड ए जार डिड नॉट स्पॉइल. जब तक कि उसके जार को ओपन ना किया जाए, ठीक है ना, तो उसको लीक ना हो, उसमें वो स्पॉइल नहीं होता है. तो निकोलस
एपर्ट्स को नेपोलियन बोनापार्ट ने 12,000 फ्रैंक्स मनी से उसको उनको अवार्ड किया दिया उनको, ठीक है। तो एंड द प्रोसेस इज नॉन एज एपर्टाइजेशन बिकॉज ऑफ the process was given by the Nicholas Eperts in the 1809 and now this process is known as canning. Okay, तो इसमें जो इनका पर्पस यही था कि इन्होंने बताया कि अगर जार कुक जो जार में कुक कर दिया जाए, ठीक है ना, और उस जार को प्रॉपर तरीके से सील्ड हो तो जब तक सीलिंग खुलेगा नहीं तब तक उसमें कोई भी माइक्रोब्स या वो ग्रो नहीं करेगा और वह स्पॉइल नहीं होगा. ओके, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द निकोलस एपर्ट. ओके, तो कैनिंग प्रोसेस जो होता है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैकेजिंग द प्रोडक्ट्स इनटू द कंटेनर. सबसे पहले हम पैक करते हैं. hermetically sealing the containers, we will discuss here what is the hermetically, thermally, and the thermally process the products and the containers together, दोनों को एक साथ. ओके, सबसे पहले हम hermetically sealing the containers, उसको कंटेनर को सील कर देते हैं, ठीक है ना. देन आफ्टर द कूलिंग एंड द स्टोरेज, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कैनिंग प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन. ओके, जैसे कोई फूड्स को हम कैसे कैन करके बनाते हैं यह प्रोसेस होता है. तो आप यहाँ पर फ्लो डायग्राम में भी देख सकते हो. वॉश विद द वाटर प्रॉपर तरीके से. फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट्स कैन किया जा सकता है, ठीक है ना. पील, ट्रीम एंड द कोर स्लाइस, उसको कंप्लीटली करने के बाद एंड इवन द चॉपिंग एंड द ब्लांचिंग करने के बाद जो भी जरूरत है. Then the dried beans also hydrate the dried beans and then blanch. उसको blanching करने के बाद, blanching you know treatment under the hot water. Then the fill can with liquid water or juice plus seasoning if needed. जो भी अगर उसमें आपको seasoning flavoring ऐड करना है उसमें जरूरत है तो उसको हमने ऐड कर दिया and then the sealed. Okay, क्लोज एंड सील द लिड, उसको कंप्लीटली कवर कर दिया गया एंड देन हीट क्विकली टू ए प्रिसाइज टेम्परेचर फॉर एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द टाइम, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज कर दें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए तो क्या होगा, इट विल डिस्ट्रॉय द क्वालिटी ऑफ द फूड्स. इसीलिए यहाँ पर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कौन से फूड का उसमें हम कैनिंग कर रहे हैं, वी मस्ट नो, ठीक है. एंड देन आफ्टर जस्ट आफ्टर द हीट प्रोसेसिंग वी हैव टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट्स इन द कूलिंग एरिया. उसको हम बहुत ही क्विक कूल करते हैं एंड देन वी स्टोर फॉर एट द लो टेम्परेचर फॉर सम टाइम्स. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कैनिंग. तो अब इसमें क्या होता है, द मेन स्टेप्स क्या क्या है यहाँ पर कि हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर पैकेजिंग. ओके, पैकेजिंग द प्रोडक्ट्स इनटू द कंटेनर. देन hermetically sealing. Hermetically sealing means the hermetically sealed the container means the container that is designed and intended to secure against the entry of microorganism. ठीक है, बिल्कुल ही एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है ना. दैट इज द hermetically sealing. hermetically sealing. ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि इसमें कोई भी माइक्रोब्स उसमें इंटर नहीं करना चाहिए. सीलिंग ग्लास जार, सीलिंग मेटल कैन्स. ओके, कुछ भी हो उसमें ऐसा सीलिंग होना चाहिए जिससे उसमें कोई भी माइक्रोब्स उसमें इंटर ना करे. देन द प्रोसेस इज द थर्मली प्रोसेसिंग. इसमें क्या होता है, एक बार पैक कर दिया गया और सील कर दिया गया. देन द कैन हैविंग द फूड्स should be thermally processed. अभी इसमें दोनों आ गया, प्रोडक्ट्स भी है और कंटेनर भी है. हाई एसिड फूड्स, अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस है. अगर हाई एसिड फूड्स है तो उसका टेम्परेचर अलग है, कंडीशंस अलग है, और अगर लो एसिड फूड्स है तो उसका कंडीशन अलग है. अगर हाई एसिड फूड्स है लाइक द जैम, जेली, सॉरक्रॉट, कीमची, पीकल्स, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, आपने देखा भी होगा इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं कैन फॉर्म में, ठीक है. तो these products should be processed at 100 degree centigrade in the water bath can.
ओके। सीलिंग यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि जब वाटर बाथ में इसको रखते हैं तो वाटर शुड मस्ट नॉट इंटर इनसाइड द कैन। ओके, so the low acid foods such as meat, poultry, fish and the vegetables also, not the fermented vegetables, but here the vegetables must be processed at 121 degree centigrade in the pressure canner. Okay, यहाँ पर प्रेशर की जरूरत है, बट वहां पर वाटर बाथ will be effective. Now the cooling is very important. Can is immersed in the cold water at or let them to cool at the room temperature from 12 to 24 hour. उसको हम कूल करते हैं, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के बाद. एज द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट ड्रॉप्स, यहाँ पर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, इसलिए कि जैसे ही वो टेम्परेचर ड्रॉप करता है हीट ट्रीटमेंट के बाद, तो उसका जो अपर लीड है वो डाउन हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है और वो एयर टाइट पैक हो जाता है, ठीक है. दिस इज ऑफन अकम्पनीड बाय द पॉपिंग साउंड्स, जो आपको ये सुनने को भी मिलेगा अगर कभी आप कैंड फूड इंडस्ट्री में अगर आप काम करोगे, तो वहां पर अगर कैंड प्रोडक्ट्स अगर तैयार किया जाता हो तो वहां पर देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर इसको कूल करने के लिए रखते हैं तो उसमें एक पॉपिंग साउंड्स आपको क्लियर सुनने को मिलेगा. वो प्रोडक्ट्स का जो लीड होता है अंदर की तरफ चला जाएगा उसमें और एयर टाइट पैक हो जाएगा, ठीक है ना. बहुत ही जल्दी या विद इन मिनट्स you will listen the popping sounds. Okay, storage should be stored in the cool, dry, dark place. Should not be stored where the temperature extremes exist. Okay, should be used within 1 year or best for the best quality. वैसे तो हम 1 साल के अंदर इसको यूज कर लेना चाहिए, but you can store and you can keep for the more longer times. Spoilage of the cane. The spoilage of the cane could be due to the biological, chemical and the combination of both. Okay, यहाँ पर केमिकल भी हो सकता है, जो उसके अंदर केमिकल्स हैं, जो उसका जो कैनिंग मटेरियल है अगर वो किस चीज का बना है, वो भी फूड के मटेरियल से, एसिडिक प्रोडक्ट से रिएक्ट कर करके कुछ ऐसे केमिकल्स बना सकते हैं. दे विल ऑल्सो स्पॉइल द फूड्स एंड माइक्रोब, that is the biological regions, is also responsible for the spoiling if the canning process has not been done properly. अगर प्रॉपर तरीके से कैनिंग प्रोसेस किया गया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पर बहुत ही एक एक स्टेप्स को फॉलो किया गया है, तो देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स. ओके, देयर विल बी नो केमिकल स्पॉइलेज आल्सो. तो अब यहां पर क्या होता है, केमिकल स्पॉइलेज इज ड्यू टू द हाइड्रोजन प्रोडक्शन. यहां पर क्या करता है कि जो आयरन होता है, जो मेटल, आयरन मेटल का अगर बना हुआ है उसका जो जार है, ठीक है, तो जो उसके साथ जो अगर एसिडिक प्रोडक्ट्स है उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना लेते हैं एंड दैट विल स्वेल द कैन. ओके, तो डिग्री ऑफ स्वेलिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय द हाई समर टेम्परेचर. जो हाई अगर टेम्परेचर पर उसको हम रख दें तो स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ जाता है उसमें. सो स्पॉइलेज हियर, केमिकल स्पॉइलेज बाय द हाइड्रोजन स्वेल, सल्फाइडिंग, हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा, इसमें सल्फाइड प्रोडक्शन भी होगा एंड रस्ट एंड डैमेज. वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन. बायोलॉजिकल स्पॉइलेज, यहाँ पर स्पॉइलेज है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रखा है. इंसिपिएंट, इंसिपिएंट का मतलब होता है बिफोर प्रोसेसिंग. ओके, लीकेज स्पॉइलेज आफ्टर प्रोसेसिंग. इनएडिक्वेट थर्मल, जो थर्मल टेम्परेचर जो ट्रीट किया गया हीट ट्रीटमेंट्स, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो वहां पर भी माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कैन. ओके, ग्रोथ ऑफ द थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी कर सकते हैं अगर हाई ट्रीटमेंट तो किया गया तो, लेकिन अगर हाई ट्रीटमेंट के बाद भी उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो मेसोफिलिक माइक्रोब्स है वो तो किल हो जाएंगे, बट द थर्मोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स विल ग्रो इनसाइड द प्रोडक्ट्स. लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर थर्मोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, यू नो देयर इज नो एनी रिपोर्ट्स दैट द थर्मोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैज कॉज्ड द फूड बॉर्न इलनेस.
ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ग्रोथ ऑफ एसिड टॉलरेंट स्पोर फॉर्मिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ओके, जो अगर एसिड उसमें हाई अमाउंट्स में है और अगर एसिड टॉलरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स उसमें अगर एंटर कर गया तो दे विल आल्सो स्पॉइल द कैन। So here the hydrogen swell. You can see here the products has been swelled due to the production of the hydrogen. Hydrogen is actually the chemical spoilage. In the most case due to the production of the hydrogen gas. यहाँ पर क्या होता है कि the acid react with the iron of the can. Okay. The occur mainly in the acidic foods. अगर फूड एसिडिक नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है, और जनरली फ्रूट्स में होता है क्योंकि फ्रूट्स का जो पीएच होता है जनरली लो होता है, आपको पहले भी बताया था मैंने, नॉट रिलेटेड टू द फर्मेंटेशन और द बैक्टीरियल स्पॉइलेज। ओके, यह बैक्टीरियल या फर्मेंटेशन प्रोसेस से रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। कैन शो वेरिंग डिग्री ऑफ द बल्जिंग व्हेन ओपन, odorless burnable gas. Okay, it occurs due to the increased storage temperature. अगर स्टोरेज टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रखा गया, उसको बढ़ा दिया गया, तब ऐसा प्रॉब्लम होता है। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द फूड्स, अगर फूड में एसिडिटी बढ़ गया तब। प्रेजेंस ऑफ सोल्युबल सल्फर एंड फास्फोरस, देन अगेन ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड द लिक्वेरिंग ऑफ कैन एट इंटरनल सरफेस। Sulfiding, that is the sulfur stinking spoilage. Okay, this spoilage cause the discoloration of the inside can, and the cans becomes the pink to the dark purple. Okay, ऐसा क्यों होता है कि due to the hydrogen sulfide formation as a result of breakdown of sulfur containing proteins that are present in the liver, kidney or the tongue by organism Clostridia growth and the Clostridia nigricans, sulfur stinker, इसको हम बोलते हैं सल्फर स्टिंकर, विद द ओडोर ऑफ द रॉटेड एग, बिल्कुल सड़े हुए अंडे की तरह उसमें स्मेल आएगा, ठीक है ना। दैट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, इट मे बी accompanied with the blackening when the H2S react with the steel base। जब हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया और वो स्टील बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है टीन के, तो उसको वह क्या कर देगा, वह ब्लैक कर देगा प्रोडक्ट्स ऑफ द टीन, फॉर्मिंग आयरन सल्फाइड्स एंड मे लीड टू द पीटिंग आल्सो, उसमें होल भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या करेगा, स्टील से रिएक्ट करेगा, और जहां पर स्टील से रिएक्ट करेगा तो वहां पर होल बन जाएगा। रस्ट एंड डैमेज, रस्ट इज रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड, ये भी जनरली टीन के जार में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है ना। स्लाइट रस्ट, इसको हम पास कर देते हैं और जनरली फूड को कंज्यूम कर लेते हैं लोग, बट द सीवियर रस्ट कंडेम एंड द रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बायोलॉजिकल स्पॉइलेज, इंसिपिएंट स्पॉइलेज, लीकेज, inadequate thermal processing, thermophilic microorganisms and the growth of the acid tolerant spore form. Here the one by one, incipient spoilage means the spoilage before processing. आपको पहले ही बताया कि अभी प्रोसेस करने से पहले ही स्पॉइल हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं incipient spoilage, ठीक है। If the food is held too long during or between the filling and closing the containers and delivery of the thermal process, मान लो कि होल्डिंग टाइम बढ़ गया, ठीक है ना, थर्मल प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले का जो टाइमिंग है, जितना रखना चाहिए फूड रेडी हो गया पैक करके और उसको हीट ट्रीटमेंट करने के लिए, और उस समय अगर बहुत ज़्यादा तक उसको स्टोर कर दिया गया तो वहाँ पर ऐसा चांस होता है कि वह स्पॉइल हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली मे हैव सफिशिएंट टाइम टू रिप्लिकेट, क्योंकि आप यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर टेम्परेचर, सो द माइक्रोब्स विल हैव good chance to grow because you are giving the good nutrients. Okay, this microorganism that grow will be subsequently killed by the thermal process. Okay, however, if the sufficient growth occurs to alter the product's characteristics, the product will be considered as spoiled. ओके, मान लो कि उसमें क्या हुआ कि प्रोसेस के दौरान थर्मल प्रोसेस से पहले उसमें बहुत ज़्यादा अगर स्पॉइलेज हो गया है और उसको पैक कर दिया गया और हीट ट्रीटमेंट कर दिया गया,
तो उसमें डेफिनेटली माइक्रोऑर्गेनिजम्स उसमें मैक्सिमम किल हो जाएंगे ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट्स। लेकिन अगर फूड अल्टर हो गया उसी समय, उसमें चेंज हो गया उसमें उसकी क्वालिटी को, तो क्या होगा कि क्योंकि उसमें ऐसा क्यों हुआ कि माइक्रोब्स उसमें बहुत गुड अमाउंट्स में ग्रो कर गए हैं, ठीक है ना, जो कि फूड जो प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स उसको चेंज कर चुके हैं, तो उस समय उसको हम हीट ट्रीटमेंट के बाद भी वो फूड कंज्यूमेबल नहीं होगा। पोस्ट प्रोसेस, दैट इज द लीकेज प्रोसेस, स्पॉइलेज। यह तब कब होता है जब अगर किसी भी कारणवश इस प्रोडक्ट जो कैंड है इसमें कैन के अंदर अगर लीकेज हो जाए, ठीक है ना, अकर्स व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म टू इंटर द कंटेनर। तो ये तभी होगा ना जब उसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंटर कर जाए। और ये कैसे हो सकता है? मेंटेनिंग द हर्मेटिक सील इज एसेंशियल टू प्रिवेंट लीकेज स्पॉइलेज। आपको बताया था कि हर्मेटिकली जो सील्ड किया जाता है, जिसमें कि बिल्कुल ही लीकेज प्रूफ सीलिंग होना चाहिए, उसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स बिल्कुल इंटर ही नहीं करना चाहिए। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से हर्मेटिकली सील्ड किया गया हो तो उसमें माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं? ग्रो नहीं करेंगे। Leakage is generally due to the inadequate form seams, okay, defective containers, okay, closures, cooling water contaminated with a large number of microorganisms। मान लो कि किसी भी कारणवश लीकेज हो गया और कूलिंग वाटर उसमें ऑलरेडी कंटामिनेटेड है। कंटेनर डैमेज, रफ हैंडलिंग, यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लोग फेंक देते हैं, वहां पर पहुंच जाए तो उस समय भी वो डैमेज हो जाएगा और उसमें लीकेज होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, डर्टी कैन हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, जो कैन इक्विपमेंट्स, कैन हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है वो अगर या कोई भी इसमें से कोई भी प्रोसेस अगर होता है तो उससे क्या होगा कि उसमें लीकेज के चांसेस अगर हो गए, तो लीकेज अगर हो गया तो उसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स विल इंटर, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है जिससे कि उसमें लीकेज ना हो। इनएडिक्वेट थर्मल प्रोसेसिंग, heat process for the canned foods are designed to destroy all the microorganisms of public health significance। okay, जितने भी microbes हैं that are responsible for cause of the human disease that will be destroyed during the heat treatments। okay, तो inadequate thermal processing अगर हो तो क्या होगा कि इससे thermal process that was applied to the products was insufficient to destroy these organism। okay, and inadequate thermal process may occur for a numbers of region, and reasons are thermal process is not properly established, the time and temperature as specified in the thermal process for the products and specified container size is not used। जो टाइम जो बताया गया है वो फॉलो नहीं किया गया हो, ठीक है ना, कम समय में ही उसको निकाल दिया गया हो और उसको कूलिंग के लिए ट्रांसफर कर दिया गया हो, एंड सम मैकेनिकल और पर्सनल फेलियर्स, ठीक है ना, किसी पर्सन का प्रॉब्लम्स हो किसी भी कारणवश उसमें, या कोई मैकेनिकल ड्रॉबैक हो। दिस स्पॉइलेज यूजुअली अपीयरिंग एज स्वैलन कंटेनर, ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि माइक्रोब्स उसमें प्रॉपर्ली किल नहीं होंगे एंड दे विल स्पॉइल द फूड्स, एंड अगेन द here the gas will produce that will spoil the foods। okay, this is spoilage caused by a single spore forming type of microorganisms। क्योंकि यहां पर क्या है, स्पोर जो प्रेजेंट हो गया वो ग्रो उसमें कर जाता है। द स्पोर ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया यूजुअली हैव ग्रेटर हीट रेजिस्टेंट। आपको मैंने पहले बताया कि लेकिन इसको थर्मोफिलिक स्पॉइलेज को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, थर्मोफाइलिक स्पॉइलेज को, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे अगर फूड्स के लिए थर्मल प्रोसेस के दौरान, तो दैट विल डिस्ट्रॉय द क्वालिटी ऑफ द फूड्स। ओके, और मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्मोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स विल हैव नो एनी रोल इन द फूड बॉर्न इलनेस, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके, ग्रोथ ऑफ एसिड टॉलरेंट स्पोर फॉर्मिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये कब होता है? occurs in the products with the pH less than or equal to 4.6, ठीक है, acid tolerant spore forming microorganisms। butyric acid anaerobes can be problems in the products with a pH
between 4.2 to the 4.6. तो ब्यूटेरिक एसिड एनिरोब्स कैन बी ए प्रॉब्लम्स इन ए प्रोडक्ट्स, जो ऐसे इस रेंज के जो पीएच वाले फूड्स हैं, फूड जिसका पीएच 4.2 टू 4.6 है, उसमें ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, एंड बिकॉज दे कैन टॉलरेट द एसिडिक कंडीशंस. Heat resistant molds have caused the spoilage problems in acid and acidified foods, because the molds are acid loving and they will grow inside the low acidic conditions. Okay, so here the type of spoilage microorganisms: sulfide stinker, putrescifactive anaerobes, mesophilic anaerobes. Here the mesophilic aerobes spore former, non-spore former, heat resistant molds, acidic flat sours, and thermophilic anaerobes spore formers, and the thermophilic flat sour spore former. यहाँ पर देख रहे हो कि मैक्सिमम जो स्पोर फॉर्मर्स हैं, दे आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द स्पॉइलेज ऑफ द कैन्ड फूड्स. ओके, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट के बाद भी स्पोर उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, दे कैन ग्रो एंड कैन कॉज द स्पॉइलेज ऑफ द फूड्स. ओके, सो here the mesophilic aerobes, strain of the bacillus is responsible here. ये कैसे प्रूव कर जाते हैं? The presence of bacillus species is generally the result of improper process application. ओके, जो कोई भी कहीं पर भी अगर improper application फॉलो किया गया तो they will grow. Mesophilic anaerobes, ये पैकेज के अंदर प्राइमरली बिलोंग टू द जीनस क्लोस्ट्रीडियम. बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है इसका क्लोस्ट्रीडियम का. इट विल कॉज द फूड बॉर्न इलनेस. ओके, बिकॉज इट प्रीफर्स द एनारोबिक कंडीशंस फॉर द ग्रोथ. ओके, putrescifactive anaerobes, proteolytic mesophilic anaerobes may cause a spoilage of the canned foods having pH 4.8 to above. And here the spoilage by these anaerobes is generally characterized by gas production that swell the containers. Okay, swell container क्या होगा? Swell हो जाएगा. Acidic flat sour spore former, facultative anaerobic spore formers that produce gas in spoiled products. The end of spoils can remain flat. Okay, so the term flat sour spoiled products have an off flavor that have been described as medicinal or the phenolic flavors. Okay, and the microorganisms here, the bacillus coagulans, have caused the spoilage in acid food such as tomato products. Other thermophilic flat sour spore formers, the main organisms are here the bacillus Asteriothermophilus, and the thermophilic anaerobes spore formers, desulfotomaculum nigrificans, known as Clostridium nigrificans, is a thermophilic anaerobes, and it will produce the hydrogen sulfide that will produce the rotten egg odor and discoloration. Non-spore formers, here the isolated in the examination of the spoiled canned foods. Okay, when these organisms are present, they indicate the products was not processed or that post-process contamination occurs. ठीक है, तभी उसमें non-spore formers उसमें grow करते हैं. More common in the under-processed acidified foods. जो इसमें जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं लाइक द इंटेरोबैक्टर एंड द स्यूडोमोनास विल ग्रो. साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा इसमें कि स्वेल हो जाएगा फूड्स जो कैंड है. ठीक है, कैन इज लीकी और द कोरोडेड. ठीक है, कैन इज रस्टी, कंटेन स्मेल पुट्रीड और द अल्कोहलिक. अगर स्मेल आ रहा है आपको कैंड बिना ओपन किए तब भी. कंटेंट्स आर डिसकलर्ड, अगर चेंज हो गया है तो. सिरप लुक्स टर्बिड, क्लाउडी, स्लाइमी और द मॉल्डी, दैट इंडिकेट्स द sign of the spoilage of the canned foods.
ओके, स्वेल हो जाएगा, गैस प्रोडक्शन होगा उसमें, तो बैलून की तरह अपियर हो जाएगा, कई सारे फूड्स होते हैं उसमें, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इमेज में देखोगे, दीज आर द स्वेलन कैन, ठीक है। यहाँ पर देखोगे रस्ट कैन हो गया, बिल्कुल ही इसको डिस्कार्डेड कर देना चाहिए, ठीक है। एंड लीकी कैंस, कहीं से भी इसमें लीक हो रहा है। तो दीज आर द साइंस ऑफ द कैन फूड्स एंड द बोtulism, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। द डिजीज कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, आपको पहले से पता है, बता भी रखा हूं कि यह केन फूड में सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स होता है, बिकॉज इट ग्रो एट द pH 4.6 एट द टेम्परेचर 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड द सम स्ट्रेन प्रोड्यूस बोटुलिनम इंटेरोटॉक्सिन दैट कॉज सीवियर न्यूरोपैरालिटिक कंडीशंस known as botulism. We have already discussed about this during the Clostridium botulism section, and it will produce 8 type of the botulism neurotoxins, that is known as neurotoxins A to H, and the human botulism caused by the type A, B, E, and the rarely by the F. Okay. The most common way of getting botulism is either by eating the contaminated foods or drinking the contaminated beverage. Okay, the patient may show blurred, or the patient may show blurred symptoms. क्या होता है, ठीक है, symptoms इसमें क्या होता है, जो अगर contaminated canned food अगर जिसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म अगर प्रेजेंट है, तो अगर उसमें कोई कंज्यूम करता है तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, डबल विजन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। वर्टिगो मीन्स चक्कर आएगा, ठीक है ना। ड्राई माउथ, स्लर्ड स्पीच में प्रॉब्लम आएगा, ड्रूपिंग आईलिड्स, ओके, डिफिकल्टी इन द स्वेलोइंग, स्पीकिंग, मसल वीकनेस, मार्क्ड फैटिस एंड द वीकनेस, वोमिटिंग, डायरिया एंड द एब्डोमिनल पेन्स, ओके। अनलेस ट्रीटेड, इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई होता है, 30 to 65%, ओके, एंड डेथ मे अकर्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी और द कार्डियक फेल्योर। आपको बताया भी था जब हम क्लोस्ट्रीडियम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण इसमें डेथ ज्यादा होता है इसमें, ओके। सो दीज आर द अबाउट द contamination and spoilage of the canned foods, okay students. So if you have any questions, you can ask. Students, if you have any doubt regarding the canned spoilage or the poultry spoilage, you can ask, or if you have no doubts, we will switch off, we'll move from the virtual class. Okay students, thank you so much for joining this session. You are currently the only